Hello friends, now I will start the nutrition in amoeba. So let us start the nutrition in amoeba. Amoeba is a unicellular organisms that are mostly found in the pond water. The water where the water is stagnant, जो पानी ठहरा हुआ होता है, constant होता है, in that water the amoeba is found. What do they eat? They eat the microscopic teeny materials such as the plants and the animals. वो microscopic teeny materials को feed करते हैं. Means the mode of nutrition in the amoeba is known as the holozoic. Holozoic means feeding on solid food. Feeding on solid food means solid food may be in the form of the teeny microbes, teeny plants and teeny animals. And the process of taking food inside the amoeba is known as the phagocytosis. The obtaining food inside the amoeba is known as the phagocytosis. What is phagocytosis? Phagocytosis means cell feeding. Cell feeding. Phagocytosis means cell feeding. So let us know how many steps takes place in the nutrition of amoeba. There are various steps, means 5 steps takes place in the nutrition of amoeba, such as the ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. So let us see about the ingestion. Amoeba, this is the figure of amoeba. Amoeba have irregular shape. The food that is floating on the surface of water, the amoeba reaches at the food and it's with the help of its body, means cell membrane, it's make finger-like outgrowth. ये finger-like outgrowth का formation करते हैं. That one is said to be the pseudopodia, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Pseudopodia. Means when they reach near the food with the help of pseudopodia, they engulf inside their body. वो अपने बॉडी के अंदर उसको क्या करते हैं? इनगल्फ कर लेते हैं. आफ्टर engulfing the food, they engulf the food surroundings the water. इसलिए जो फूड होता है उसके साथ साथ जो वाटर होते हैं उसको भी वो engulf कर लेते हैं. These surroundings waters forms the food vacuoles. ये जो surroundings water होते हैं इसका फॉर्मेशन करते हैं food vacuoles का. Means the food is engulfed into the food vacuoles. जो फूड होता है वो कहाँ पे इंगल्फ किया जाता है? फूड वैक्यूल्स में. अब फूड वैक्यूल्स में आफ्टर द इनगल्फिंग द नेक्स्ट प्रोसेस, आफ्टर द इंजेशन द नेक्स्ट प्रोसेस इज द डाइजेशन. जो अगला प्रोसेस होता है दैट वन इज द डाइजेशन. जो डाइजेशन में क्या होता है? व्हेन द फूड इज engulfed inside the bodies, then a special types of the enzymes are secreted from its body. इसके बॉडी सेल्स के द्वारा स्पेशल टाइप का एंजाइम का सिक्रेशन किया जाता है. that enters into the food vacuoles. जो कहाँ पे इंटर करते हैं? जो फूड वैक्यूल्स होते हैं उसमें इंटर करते हैं. जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो उसमें इंटर करते हैं एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. मीन्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस. मीन्स यू कैन से द insoluble substances to soluble substances. उसको insoluble substance से soluble substance में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. So this is the function of the enzymes that helps in the breakdown of complex food material into the simpler food materials. After the digestion, जब डाइजेशन हो जाता है द नेक्स्ट प्रोसेस इज द एब्जॉर्प्शन. जो अगला प्रोसेस होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन. इन द एब्जॉर्प्शन द डाइजेस्टेड फूड, दिस इज द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस आउट. जो डाइजेस्टेड फूड होता है दैट वन इज डिफ्यूजेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा. ये जो साइटोप्लाज्म होता है अमीबा के उसमें डिफ्यूज होने लगता है. आफ्टर डिफ्यूजन दिस फूड वैक्यूल्स इज
इनविजिबल, ये यहाँ से अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट प्रोसेस इज टेक्स प्लेस, जो अगला प्रोसेस होता है, अब क्या होता है, when the food is absorbed by the amoeba then it grows in size by the process of the respiration प्रोसेस के थ्रू जो इसका एब्जॉर्ब फूड होता है वो जब उसे रिएक्ट करता है तो इसका बॉडी जो होता है, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी दे ग्रो इन शेप एंड साइज। अमीबा ग्रोज मीन्स दे ग्रो इन शेप एंड साइज एंड कैन रिप्रोड्यूस टू मेक 2 डॉटर सेल्स, ये रिप्रोड्यूस करके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट प्रोसेस इज स्टार्ट, दैट वर्ड इज द इजेशन। देयर इज इजेशन मीन्स throwing of waste materials. There is no any such anus, इसमें किसी एनस का फॉर्मेशन नहीं होता थ्रू विच दे कैन एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल्स। दे एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल्स थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही वेस्ट मटेरियल को सेक्रेट करते हैं। व्हेन द वेस्ट मटेरियल्स एक्युमुलेटेड इनसाइड द अमीबा in great amounts, in the larger amounts, then the cell membranes ruptures at any place, ये किसी भी प्लेस से ये ruptures हो जाते हैं and the undigested food is thrown out, जो undigested food होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो this process is known as the egestion. Thus the nutrition is completed into the amoeba. The various steps involved in the nutrition of amoeba is ingestion, digestion, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। वंस अगेन हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो अमीबा होता है मोस्टली ये पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं। इसमें इसका जो बॉडी होता है वो इरेगुलर होता है। इरेगुलर होने की वजह से इसमें फिंगर लाइक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ जो होते हैं जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया हेल्प्स इन कैचरिंग फूड, ये भोजन को पकड़ने में हेल्प करता है। अब जब ये भोजन को पकड़ लेते हैं, इसके जो चारों तरफ फूड होते हैं, फूड के चारों तरफ जो वाटर होते हैं उसके साथ वो उसको कैप्चर करते हैं। तो जो वाटर होता है डेट फॉर्म्स द फूड वैक्यूल, किसका फॉर्मेशन करता है, फूड वैक्यूल्स का। अब फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसमें डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन जब इसके बॉडी में फूड चला जाता है तो स्पेशल टाइप्स के इसके बॉडी के थ्रू कुछ स्पेशल टाइप फूड वैक्यूल्स के थ्रू स्पेशल टाइप्स के एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। एंजाइम्स एंटरिंग इनटू द फूड वैक्यूल्स। अब यहाँ पे फूड वैक्यूल्स में कुछ एंजाइम्स एंटर करेंगे एंड दैट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस। वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करेंगे और इसके बाद जब इसका डाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा कि अब ये सिंगल सेल है तो ये सिंगल सेल ही क्या करेगा कि जो पूरा फूड डाइजेस्ट हो गया है वो अब उसको अब्जॉर्ब करेगा। अब्जॉर्ब करेगा तो जो फूड वैक्यूल्स होता है, फूड वैक्यूल्स से ये जितने भी पार्ट्स होते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स, वहाँ पे ये फूड जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं तो जो डाइजेस्टेड फूड इज डिफ्यूज आउट, डिफ्यूज होकर के ये पूरे बॉडी में फैल जाता है, जिसके बाद ये जो फूड वैक्यूल्स होते हैं ये डिसअपियर हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि इस जो अमीबा का बॉडी होता है वो साइज में इंक्रीज करता है, शेप में इंक्रीज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और इंक्रीज करने के बाद अब ये अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, मीन्स वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या को मीन्स 2 डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल इसके बॉडी में एक्युमुलेट होते जा रहे हैं लार्जर अमाउंट में, अब कहीं से इसका जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो रैप्चर हो जाएगा। वो रैप्चर होने के बाद उसी जहाँ से रैप्चर होता है वहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो वहाँ से बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार से डाइजेशन कंप्लीट होता है अमीबा में। ओके, थैंक यू।